हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ चेतन एंड आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे हैं फ्रॉम नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये दो पार्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। दिस इज़ पार्ट वन। सो पी वाई क्यूज़ एंड एज यू नो 2020 से लेकर 2024 तक के जो भी पी वाई क्यूज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। सो आई हैव डन SSC CGL 2017. I got a rank of 60. Then I was posted as an assistant audit officer in CAG. I worked there for about 1.5 years. I also scored 96.5 percentile in CAT exam 2016 and a rank of 3 in UGC NET Commerce 2018. Now we have discussed different topics already like remainder theorem units. I think we have discussed all the topics, remaining topics. This classification is only remaining under number system, and today we are doing part 1. In the next video we'll discuss part 2 because many questions are being asked from this topic. Now we'll go backwards. We'll first discuss the latest year questions 2024. So the question is, let P, Q, R and S be distinct positive integers. Now what are integers? Integers are basically values like this. Okay. Uh, these are negative integers, these are positive integers, and 0 is neither negative nor positive. So they are saying to you positive integers. So positive integers are nothing you can say but natural numbers only. We can say distinct positive integers are natural numbers only. Now the question is let P and Q be odd as per the question, and R and S be the even integers. Okay. Now they have given you certain statements. You have to judge which of them is true, which of them is false. Like P minus R square. Now listen to me. Whether it is even, whether it is odd, when you do the square of any number, it will change. Now we have to see, like P and Q are odd. So odd, basically if I just depict this in terms of odd and even, you will get a better clarity. You can also remember these certain properties or certain relations between odd and even numbers. Like P minus R would mean odd number because P is an odd number and R is an even. So odd minus even, the square of it multiplied by Q into S. Now Q is an odd number and S is an even number. Now can you tell me what is this expression? If you subtract an odd and an even number, whenever you subtract you always get an odd number. So the square of an odd number, and if you multiply an odd number with an even number you will always get an even number. You can check. Now a square of an odd number, listen to me very carefully, a square of an odd number will always be odd. So this is, so basically if I have to tell you, these are two expressions and they are also being multiplied as you can see. So this first expression will be an odd number and this second expression is, as we have already calculated, even number. So again when we multiply an odd number with an even number, we will always get an even number. So it says is even, it is correct. The first one is absolutely correct. This is how you have to do these questions. So you need to be thorough, you need to be conceptually clear with these different types of numbers. Like I can, without even checking, I know that if I multiply an odd number with an even number, I know for sure it will be an even number. So with practice you will also get this clarity. Now Q minus S, let me just write down Q minus S multiplied by Q square into S, right? Now Q minus S, what is Q? Q is an odd number, and what is S? S is an even number. This is 1. Okay, then multiplied by Q square. Now what is Q? Q is odd. So odd number square, and what is S? S is an even number multiplied by an even number. Now odd minus even will always give you an odd number. Then odd number square will always be odd multiplied by the even number. Now odd number into even will always give you an even number. Again odd into even, always even. So this is also correct. The second statement is also correct. Let us check the third and the final statement. The last statement we have to check. Let us check that also. It says Q plus R whole square. So we will just write it down first to have clarity. So we have Q plus R whole square, then it's multiplied by P plus S.
Now what is Q? Q is an odd number. What is R? R is an even number. So we add the two, we take the square, multiplied by P. P is an odd number and S is an even number. Now you only can tell me odd plus even, always odd number square multiplied by odd plus even, it will always be odd. Okay. Now odd number square will always give an odd number and then again multiplied by odd. So any odd number multiplied by any odd number will always give you odd number. So this third statement is also correct. So all the three, 1, 2, 3 are correct. So option D would be the correct answer. Moving on, next question, another question from 2024. It says three numbers x, y, z are selected from the set of first 7 natural numbers. What are first 7 natural numbers? Very easy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Whole number start from 0, natural number start from 1. And the relation is such that x is greater than 2y, which is greater than 3z. This is given. This is something given to us. You have to tell how many such triplets, how many values, triplets values of x, y, z satisfy this relation, and x, y, z can take only these values, one of these values. Okay. Now it's we can solve it using hit and trial. एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल. देखो हमेशा फायदा होता है कि आप पहले ऑप्शंस को जरूर देख लें. ऑप्शंस क्या गिवन है आप लोगों को? 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट्स, 3 ट्रिपलेट्स, 4 ट्रिपलेट्स. तो 4 मैक्सिमम है, 4 से ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे. ये चीज एकदम क्लियर हो गई है. ठीक है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम 4 ढूंढ पा रहे हैं. अगर हमने 4 ढूंढ लिए तो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, और अगर 4 से कम है तो द रिमेनिंग ऑप्शन कुड बी द आंसर. अब देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती. 1 क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज दीज वैल्यू x हैज टू बी ग्रेटर देन दीज वैल्यूज. तो x 1 तो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, x 3 भी, 3 मिनिमम x की वैल्यू हो सकती है. बट 3 में प्रॉब्लम क्या होगा? मान लीजिए x की वैल्यू 3 है, मान लीजिए x की वैल्यू 3 है. ठीक है. सो 3 शुड बी ग्रेटर देन 2y एंड शुड बी ग्रेटर देन 3z. अब मेरी बात समझना, z की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 ही हो सकती है, बिकॉज 1 to 7 में से कोई वैल्यू लेंगे वेरिएबल्स. तो z की वैल्यू अगर 1 भी होगी ना, तब भी ये 3 उससे बड़ा नहीं हो पाएगा, उसके बराबर हो जाएगा. इसीलिए x की वैल्यू 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. तो हम चेक करेंगे 4 से. हम चेक करते हैं 4 से. मान लीजिए अगर x की वैल्यू 4 है, सो 4 शुड बी ग्रेटर देन 2y एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 3z. अभी हम यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं. मान लेते हैं, अब अगर हम यहाँ पे z को 1 मान लेते हैं और y को भी अगर 1 मान लेते हैं, लेट्स से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3. लेकिन ये गलत हो गया, बिकॉज 2 ग्रेटर नहीं होता 3 से. तो इसलिए y की वैल्यू 1 तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते. ठीक है. और अगर आप y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन 4 हो जाएगा, बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4. इसीलिए x इज इक्वल टू 4 भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो अब हम चेक करेंगे 5 के लिए. ठीक है. तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूं. आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. अब आप लोग खुद चेक कर सकते हैं आंसर्स. मान लीजिए अगर x की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 2 होगी, बात समझना, x अगर 5 है तो 2y होगा 4. तो z की वैल्यू में अगर 1 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 3. और ये जो है क्लियरली आप देख सकते हैं, ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है. एक और अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया कि x अगर 5 है, y अगर 2 है, z. अब मान लेते हैं अगर x 6 है, तो x की वैल्यू अगर 6 है, तो यहाँ पे भी अगर आप y को 2 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और z को अगर आप 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3. ये मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैं लिख रहा हूं x, दिस इज 2y, दिस इज 3z, जो हमको इनिशियली गिवन है. तो 6 to 1 एक और ट्रिपलेट मुझे मिल गया. सिमिलरली 7 to 1 विदाउट एनी डाउट भी एक ट्रिपलेट मिल जाएगा, जहां पे 7 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा. और कोई पॉसिबिलिटी है वो आपको जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए. बिल्कुल हमें एक और बार चेक, जैसे 7 एक्स वाई को अगर 3 मान लो, 7 3 1, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. इसमें क्या होगा? 7 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 3. तो ये 4 पेयर्स जो हैं, हमको ये 4 पेयर्स ही मिल पाएंगे, इसके अलावा कोई पेयर नहीं मिलेगा, ट्रिपलेट नहीं मिलेगा. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2024. देखो ये क्वेश्चंस मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के टॉपिक में डाल रहा हूं, बट आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन को भी यूज कर रहे हैं, कहीं जगह पे वो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, कहीं पर वो नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट. तो मल्टीपल टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चंस बनाते हैं काफी बार. ठीक है. लाइक ये क्वेश्चन देखते हैं, पी एंड क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है. बेसिकली नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं. सेटिस्फाइंग, अब क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि p शुड बी लेस देन q
और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, P और Q का सम वो K के बराबर होना चाहिए। दीज आर द टू कंडीशंस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K बताओ, ध्यान से पढ़ना, दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली, ऐसी वैल्यू K की बताओ। ऑप्शंस क्या है, 3 4 5 6, तो K 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। वो वैल्यू बताओ K की जिससे आप P और Q को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब वो वैल्यू बताओ K की जिससे आपको मल्टीपल, और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ बेसिकली जिससे आपको P और Q के मल्टीपल वैल्यूज मिल जाए। तो हम एक एक करके चेक करेंगे ऑप्शन। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे बिकॉज हमको स्मॉलेस्ट ही निकालना है। अब मान लेते हैं K जो है अगर 3 है तो P और Q की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। देखो P लेस देन Q है, इसको भी ध्यान रखना है। तो अगर P1 है और Q2 है तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है बिकॉज P और Q जो है दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो और कोई पॉसिबल, तो 3 जो है, 3 इज द वैल्यू ऑफ K विच यूनिकली डिटरमाइंस P एंड Q। पर हमको वो वैल्यू चाहिए विच डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन, है ना। तो इसलिए 3 तो आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट। अब हम चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर K की वैल्यू होगी 4, उसको चेक करते हैं। अगर K की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, P1 और Q3, दिस इज वन वैल्यू। और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि मान लीजिए आप 2 और 2 ले लेते हो, लेकिन 2 और 2 में हमारा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हमारा रिलेशन क्या है, P इज लेस देन Q, हमें इसको भी ध्यान रखना है। तो 4 से भी आपको एक ही आंसर मिल पाएगा, तो 4 भी यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है P और Q को, इसलिए 4 भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू पे चलते हैं, दैट इज 5। अब 5 पे चेक करते हैं कि क्या 5 पर हमको यूनिक वैल्यू, दो वैल्यूज मिल सकती हैं क्या 5 पे। जैसे एक तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4 और दूसरा हो जाएगा 2 और 3, और ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं P लेस देन Q। तो 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है K की जो यूनिकली डिटरमाइन नहीं करेगा P और Q को, इसलिए ऑप्शन सी 5 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में ही आया था। अब ये क्वेश्चन है आपका डेटा सफिशिएंसी के ऊपर। इसमें क्या होता है, बेसिकली दो स्टेटमेंट्स होती हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट होती हैं, जनरली 2 ही होती हैं, और आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है, 2 स्टेटमेंट होती हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ m and n, m और n की वैल्यूज बताओ वेयर m and n आर नेचुरल, जहां पे m और n नेचुरल नंबर्स। ये बता दिया, गिवन है कि m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि यूनिक वैल्यू क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज, ये आपको निकालना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, m प्लस n, ठीक है, क्या है, m प्लस n इज ग्रेटर देन mn एंड लिखा है, देखो एंड और में फर्क होता है, एंड m शुड बी ग्रेटर देन n। तो आप मुझे ऐसी वैल्यूज बताओ m और n की जिनका उनका अगर आप सम करोगे तो उनके प्रोडक्ट से बड़ा आएगा। देखो उसमें आप ऐसा, उसमें क्या होगा, n को हम अगर 1 रख लें और m की हम कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस 1, m अगर 2 है, n अगर 1 है, तो दिस इज ग्रेटर देन 2 इंटू 1, ये 3 होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2। ऐसे ही आप n को अगर 1 रखो और m की कोई भी वैल्यू ले लो ग्रेटर देन 1, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो ग्रेटर देन 1, तो चाहे 3 ले लो, 4 ले लो, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। बट यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, n की तो यूनिक वैल्यू मिल गई 1, लेकिन m की हमको यूनिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। देखो एक बार ऑप्शंस भी देख लो, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर। इसका ऑप्शन ए का मतलब क्या है, इस ऑप्शन ए के दो मतलब है कि या तो आपको ओनली 1 से आंसर मिले या ओनली 2 से मिले, मतलब 1 से मिले और 2 से ना मिले, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, और 2 से मिल जाए आंसर और 1 से ना मिले, इनमें से कोई भी केस है तो ऑप्शन ए आंसर होगा। सेकंड केस, कैन बी आंसर्ड बाय ईदर, मतलब 1 से भी आंसर मिलना चाहिए अलोन, 2 से भी मिलना चाहिए, ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन 3 हो गया कि दोनों को यूज करके ही आंसर मिलेगा एक साथ, इंडिविजुअल से नहीं मिलेगा। और चौथा क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन, कि अगर आप दोनों को भी यूज कर लोगे तब भी आंसर नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शंस को पहले डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं कि क्या मुझे स्टेटमेंट 2 अलोन से आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे गिवन है कि m और n का प्रोडक्ट जो है वो 24 है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो गए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखते हो तो यहाँ पे 8 और 3 एक पेयर हो सकता है m और n की वैल्यूज का, एक हो सकता है 12 इंटू 2, एक हो सकता है आपका 6 इंटू 4, तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे जो है निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन से भी आंसर नहीं आएगा, आई एम गेटिंग मल्टीपल आंसर्स, आई शुड गेट वन यूनिक वैल्यू ऑफ m एंड वन यूनिक वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब 1 से अलोन से आंसर नहीं आएगा, 2 से भी, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी हो गया।
अब या तो दोनों से मिलकर आंसर आ जाएगा या दोनों से मिलकर आंसर नहीं आएगा। अब देखो दोनों को कंबाइन करते हैं, तो अगर मैं स्टेटमेंट 2 को देखूं तो स्टेटमेंट 2 के हिसाब से क्या पॉसिबल वैल्यूज है, एम और एन की मल्टीपल वैल्यूज हैं, 8 3 एक पेयर हो गया, देन आपका 6 और 4 एक पेयर हो गया, आपका 12 इंटू 2 एक पेयर हो गया, एक आपका हो गया 24 इंटू 1, ऐसे मल्टीपल पेयर आपके पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट 1 को कंबाइन करूं तो m ग्रेटर देन n, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो 3 4 2 या 1 में से कोई होगी, और दूसरा m प्लस n ग्रेटर देन mn मतलब n 1 होगा। तो एक ही पेयर मिलेगा हमको यहाँ पे, और एक ही वैल्यू मिलेगी, m इज इक्वल टू 24 n इज इक्वल टू 1। यही वैल्यूज जो है हमें, यदि हमारी दोनों कंडीशन को हम यूज करें तो हमको एक आंसर मिलेगा, दैट इज m 24 एंड n इज इक्वल टू 1। सो यस, both the statements together are sufficient to answer the question। यूनिक वैल्यू मिल रही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ में आ रहा है, मैं काफी सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 से। ये भी क्वेश्चन आपका डीएस का ही है, डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की यूनिक वैल्यूज बताओ वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टेटमेंट 1, x अपॉन y ऑड है, x अपॉन y जो है वो ऑड होना चाहिए, मतलब इसका जो हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए, इनको डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, जैसे कि 12 डिवाइड बाय 4 3, ये एक ऑड नंबर है, या कुछ और एग्जांपल ले, जैसे कि 24 डिवाइड बाय 8, ये भी 3 आ रहा है फॉर एग्जांपल, या लेट्स से 35 डिवाइड बाय 7, यहाँ भी हमें ऑड नंबर मिल रहा है। तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स वाई की, हमको तो यूनिक वैल्यू चाहिए, है ना। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर हमें नहीं मिल पाएगा, एक यूनिक आंसर नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 अलोन, क्या स्टेटमेंट 2 अलोन को यह हमें आंसर दे सकता है। बोल रहे हैं x इंटू वाई जो है वो है 12, बट यहाँ पे भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, x को 6 रख लो, y को 2 रख लो, या x को 6 2 रख लो, y को 6 रख लो, या फिर 4 इंटू 3, तो मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं। तो 2 अलोन से भी आंसर नहीं मिलेगा। बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या आपको आंसर मिलेगा, ये चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं x और स्टेटमेंट 2 को यूज करके क्या क्या वैल्यूज रखते हैं, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 3, देन उल्टा चलेंगे, मतलब अगर x को छोटा कर दें 3 इंटू 4, 2 इंटू 6 और 1 इंटू 12, ये सारी वैल्यूज, यही इतनी वैल्यूज है। ठीक है, इसके अलावा तो नहीं है। और हमें देखना है कि x को डिवाइड करोगे जब y से तो एक ऑड नंबर मिलना चाहिए, जैसे 12 डिवाइड बाय 1 करोगे तो यहां से वैल्यू मिलेगी, डिवाइड करोगे 12 डिवाइड बाय 1 तो मिलेगा 12, तो ये ऑड नंबर नहीं है। 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिलेगा क्वेश्चन 3, हाँ तो ये एक पॉसिबल आंसर है। देन 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको जो है बेसिकली डेसिमल्स में आंसर मिलेगा, इसका जो है क्वेश्चन डेसिमल्स में होगा, ऑड नंबर नहीं मिल पाएगा। ऑड नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। देन 3 डिवाइड बाय 4 अगेन डेसिमल्स फ्रैक्शंस में आएगा, 2 डिवाइड बाय 6 भी फ्रैक्शन में आएगा। तो 6 इंटू 2 ही एक ऐसा पेयर है, मतलब x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2 ही एक ऐसा पेयर है जिसका प्रोडक्ट 12 है और जिसका क्वेश्चन एक ऑड नंबर है। तो हमें एक यूनिक आंसर मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ यूनिक आंसर इफ वी कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले अगर मैं थोड़े से प्राइम नंबर्स लिख दूं, 2 3 5 7 11 13 17, यही होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको हम प्राइम बोलते हैं। ठीक है, और बाकी सारे होते हैं कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं और उनका सम भी प्राइम है। 3 प्राइम नंबर्स और उनका सम भी प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर दोस, तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तीनों आपको आइडेंटिफाई करना है, यू शुड गेट अ यूनिक वैल्यू। स्टेटमेंट 1 देखो पहले, देयर सम इज लेस देन 23, उनका सम 23 से कम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 3 5 देखो, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 10 और वो 23 से भी कम है। लेकिन यहाँ पे था कि उनका सम भी प्राइम नंबर होना चाहिए और 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2 3 5 पेयर एक ट्रिपलेट नहीं हो सकता। ठीक है, और देखते हैं फिर नेक्स्ट 2 3 7, अगर आप देखो
तो 2 प्लस 3 प्लस 7 क्या होगा 12। देखो यहाँ पे भी 12 भी जो है प्राइम नहीं है। देखो 2 को हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, मेरी बात समझना। 2 इज द, एक मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो है वो सारे के सारे ऑड हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 हमारे ट्रिपलेट का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बात समझो, अगर आप 2 लेते हो, एक और प्राइम नंबर लेते हो, वो ऑड ही होगा, और दूसरा तीसरा भी ऑड होगा, तो दो ऑड को सम करोगे तो इवन आएगा, और इवन में इवन ऐड करोगे तो हमेशा इवन आएगा, तो हमें कभी भी ऑड वैल्यू नहीं मिल पाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसलिए 2 तो हमारे आंसर का पार्ट हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट कोई पेयर चेक करें, ट्रिपलेट चेक करें, जैसे मान लीजिए 3 5 7, तो 3 5 7 को ऐड करोगे तो सम आएगा 15, लेकिन 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी एक आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करो, 3 5 और 11 को कंबाइन करोगे अगर आप, तो 3 प्लस 5 प्लस 11 अगर मैं ले लूं, तो यहाँ पे सम आएगा 19 विच इज लेस देन 23, और ये एक प्राइम नंबर भी है, तो मुझे एक पेयर मिल गया। स्टेटमेंट 1 को मैं यूज कर रहा हूं, मुझे एक ट्रिपलेट मिल गया, बट मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे एक यूनिक आंसर मिल रहा है कि नहीं। अगर मुझे एक और आंसर मिल जाएगा तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं होगा। 3 5 11 चेक कर लिया, अब मैं चेक करूं अगर लेट्स से 3 5 और 13, तो यहां पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 18 प्लस 21, लेकिन 21 कम तो है 23 से, लेकिन वो प्राइम नहीं है। मान लीजिए फिर आप 3 5 और 17 चेक करते हैं, तो ये तो एक्सीड कर जाएगा 23 से, ये हो जाएगा 25, तो ये भी नहीं हो सकता। और कोई अगर आप चेक करो, 3 और 5 को हमने यूज कर लिया, मान लो 3 और 7 को अगर आप यूज करो, 3 प्लस 7 प्लस 11, तो ये आ रहा है 21, बट 21 प्राइम नहीं होता, ठीक है। देन लेट से 3 7 और 13 को अगर आप ऐड करोगे, तो ये आपका निकल के आ रहा है 23, लेकिन 23 प्राइम तो है, लेकिन 23 से छोटा नहीं है, उसके बराबर है ना। तो हमें एक यूनिक आंसर मिल गया 3 5 11, तो स्टेटमेंट 1 से मुझे 3 5 11 एक यूनिक आंसर मिल गया, 3 प्राइम नंबर्स मुझे मिल गए। तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है, आई कैन से कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट 2 को भी हमें चेक करना होगा एक बार, कि स्टेटमेंट 2 अलोन से आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमको एक बार वी नीड टू चेक दैट। स्टेटमेंट 2 अलोन क्या बोल रही है, वन ऑफ द नंबर इज 5, कि उनमें एक नंबर 5 है। देखो हमने लिखे थे प्राइम नंबर्स क्या थे हमारे, प्राइम नंबर से 1 3 नॉट 1 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19। अब कह रहे हैं एक प्राइम नंबर उनमें से 5 है, इतना ही बोला है। अब सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखो, 1 को मत देखो, ठीक है, सिर्फ 2 को देखो। 3 प्राइम नंबर्स बताओ जिनका सम प्राइम हो और उनमें से एक नंबर 5 हो। तो एक तो हमने अभी देखा था 3 5 11, एक तो ये है ही, हमने पिछले ऊपर चेक करा अभी पिछले स्टेटमेंट में, ठीक है। ये जो है इसका सम 19 है विच इज प्राइम, ठीक है, और एक नंबर 5 भी यहाँ पे आ ही रहा है। और कोई अगर आप चेक करो कि 5 से और कुछ आपका बन रहा है, लेट्स से 3 प्लस 5 8, अब इसमें और अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, लेट्स से आपको चेक करना होगा इसमें कि लेट से 13 अगर आप ऐड करते हो, तो यहाँ पे 20 बना रहा था, 13 से नहीं होगा, 17 से भी नहीं, मान लो 19 ऐड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका निकल के आ रहा है। तो अब हम 3 5 से तो हमारा पेयर नहीं बन रहा। लेट से अगर मैं चेक करूँ 5 और 7 को लेकर, लेट से आई चेक फॉर 5, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, तो 5 7 11, ये भी मुझे जो दे रहा है सम दे रहा है 23, और ये प्राइम भी है। तो यहाँ से मेरे को दो आंसर्स मिल रहे हैं, और हो सकता है और भी आंसर मिल जाए, बट दो मिल रहे हैं मतलब यूनिक वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, तीन अलग अलग, दो अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो इसका मेरा सही आंसर है ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि कोई एक स्टेटमेंट अलोन से आंसर मिलेगा, दूसरी स्टेटमेंट अलोन से आंसर नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। आई होप गाइस सभी को समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय, एक और क्वेश्चन है डीएस का, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या है कि क्या x प्लस वाई जो है, क्या ये जो वैल्यू है ये एक इंटीजर है, ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है यस या नो में, ठीक है। तो पहले मैं अगर स्टेटमेंट 1 को चेक करता हूं सिर्फ कि 2x प्लस वाई, ये बोल रहे हैं 2x प्लस वाई जो है ना ये एक इंटीजर है, तो क्या इसके इस बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि x प्लस वाई इंटीजर होगा कि नहीं होगा? देखो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए x1 है y2 है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे तो x प्लस वाई भी इंटीजर होगा, x को मैंने 1 माना, y को मैंने 2 माना। लेकिन मान लो x की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 3/2 लेट से, और y की वैल्यू मान लीजिए मैं 1 मान लेता हूँ, तो ये कितना आ रहा है, ये तो इंटीजर आ रहा है 3 + 1 4।
लेकिन अगर आप x प्लस वाई करोगे तो 3/2x मान लिया, y को 1 मान लिया, तो ये इंटीजर नहीं आएगा। तो इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो स्टेटमेंट 1 से हमें कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। सिमिलरली अगर आप स्टेटमेंट 2 को भी देखोगे, x प्लस 2y, अगर x प्लस 2y इंटीजर है, लेकिन इसमें मल्टीपल केस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 2y की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं x और y की कुछ वैल्यूज लेता हूं, मान लो एक में ले लेता हूं x1 y2, एक में ले लेता हूं लेट्स से y को मान लो 3/2, x को मान लो 2। तो अगर x 1 है तो ये हो गया 1, और y अगर 2 है तो ये हो गया 4, तो ये इंटीजर है, ठीक है। और x प्लस y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी, वो भी इंटीजर है। लेकिन मान लो अगर x 2 है और y जो है वो है 3/2, तो इस केस में क्या हो रहा है, अभी भी वैल्यू इंटीजर ही आ रही है। लेकिन x प्लस वाई करोगे, 2 प्लस 3/2 करोगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है। तो 1 से भी अलोन से आंसर नहीं मिल रहा, यस और नो कंफर्म आंसर नहीं मिल रहा है ना, और 2 से भी नहीं मिल रहा। अब अगर आप दोनों को कंबाइन करके चेक करें अगर हम एक बार, कि क्या दोनों को कंबाइन करके हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, तो वो भी हमको एक बार देख लेना चाहिए। मान लीजिए कुछ भी हम रैंडम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। देखो मैं x और y की कुछ वैल्यूज मान लेता हूँ, ठीक है, बात समझना मेरी। जैसे मान लो मान लो x1 है, y2 है, x को या इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, एक ये आपने ये वैल्यू अज्यूम कर ली। एक कुछ और वैल्यू आप अज्यूम कर लो, कुछ भी रैंडम, लेट्स से 1 और 1 कुछ भी मान लो, 1 और 2 कुछ भी मान लो, या फिर एक वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट्स से x को मान लो 4/3, y को मान लो 7/3, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पेयर चेक करोगे तो यहाँ से आपको 2x प्लस वाई भी इंटीजर मिलेगा, x प्लस 2y भी इंटीजर मिलेगा, और x प्लस वाई भी जो है आपको इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एक वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है, मैंने इसको आप देखो, 2x की जगह डाल दो 4/3 और y की जगह डाल दो 7/3। यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 8/3 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 15/3 विच इज 5। तो इंटीजर मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप x प्लस 2y में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो x प्लस 2y में अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज को, तो x की जगह डाल दो 4/3 और y की जगह डाल दो 7/3, 2 इंटू 7/3, तो ये कितना मिलेगा, 4/3 प्लस 14/3 विच इज 18/3, तो इसकी वैल्यू आ रही है 6, तो वो भी इंटीजर है। लेकिन बात मेरी समझना, 4/3 और 7/3 जो मैंने दो वैल्यूज ली हैं, इससे आपका स्टेटमेंट 1 भी इंटीजर आ रहा है, स्टेटमेंट 2 भी इंटीजर आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन है x प्लस वाई, तो 4/3 प्लस 7/3 करोगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा, 11/3 आ रहा है जो कि इंटीजर नहीं होता। तो 1 और 2 से मिलाकर भी आपको कोई कंफर्म आंसर नहीं मिलेगा। इन दोनों को यूज करके भी आपको एक इंटीजर मिल भी सकता है x प्लस वाई के फॉर्म में, और नॉन इंटीजर भी मिल सकता है। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। दोनों को यूज करके भी आप कोई कंफर्म आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई वुड से। देखो ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है, ऐसे क्वेश्चंस बेटर है कि एग्जाम में हम लोग स्किप कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 ऑफ दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ऑफ दी 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहे हैं 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, PQRST, ठीक है। कह रहे हैं उनमें से 3 इवन है। इनमें से कौन से 3 है वो नहीं पता, बट 3 इनमें से इवन नंबर है और 2 जो है वो ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, नॉट इन द सेम ऑर्डर। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो दो स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। देखो मेरी बात समझना, 3 इवन नंबर्स हैं और 2 ऑड नंबर्स हैं, या तो आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जब भी 3 इवन नंबर्स हैं उनको चाहे प्लस करो चाहे ऐड करो हमेशा इवन ही मिलेगा, और जो 2 ऑड नंबर्स हैं उनको चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो इवन ही मिलेगा, और 2 इवन को ऐड करो या प्लस करो या माइनस करो तो इवन ही मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आप कोई भी एग्जांपल लेके खुद चेक कर सकते हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पे हम आते हैं, क्या है ये, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। अब ये जो है ना, ये डेफिनेटली ऑड हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 3 इनमें से इवन है, मान लो p और r और s इवन है मान लो, और q और t ऑड है मान लेते हैं एक बार, तो ये भी इवन होगा। वैसे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपने आप इवन ही बन जाएगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ठीक है। तो 3 इवन नंबर्स को प्लस करो माइनस करो इवन ही मिलेगा, और Q और T जो ऑड है तो ऑड को प्लस करो माइनस करो तो इवन ही मिलेगा। तो यहां से हमें एक्चुअली इवन मिल रहा है।
तो डेफिनेटली ऑड तो गलत है कि हमेशा ऑड ही होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए सही आंसर होगा ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एक नंबर है p जो प्राइम है। अब देखो प्राइम नंबर्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 और एक, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये हमेशा ध्यान रखना। और एक है कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर इवन भी हो सकता है लाइक 4 और वो ऑड भी हो सकता है लाइक 9। ठीक है, तो जो भी नंबर प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, और 1 एक इकलौता नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना तो कॉम्पोजिट है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो अब एक एक करके स्टेटमेंट्स को हम चेक करते हैं, जैसे कि p प्लस सी पी माइनस सी कैन बी इवन। क्या ये इवन हो सकता है? चेक करके देख लो, कैन लिखा है, पॉसिबल है, कैन है ना, डेफिनेटली नहीं बोल रहे हैं, कैन बी इवन। तो मान लो p जो है प्राइम नंबर है, जैसे मैंने आपको बोला, मान लो मैं p को 2 मान लेता हूं और यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर में मैं 4 ले लेता हूं, तो 2 प्लस 4, या फिर अब यहाँ पे देखो मेरे को प्राइम नंबर थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा बिकॉज p माइनस सी है। तो मान लो कुछ और ले लो, लेट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मान लेते हैं मैं प्राइम नंबर यहाँ पे p की वैल्यू ले लेता हूँ 11, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर मान लेता हूँ 9। तो ये बोल रहे हैं 11 प्लस 9, 11 माइनस 9, क्या ये इवन है? चेक करो, 20 डिवाइड बाई 2 विच इज 10, हाँ बिल्कुल इवन है। तो ये सही है, इट कैन बी इवन, और हमने चेक कर लिया, इट इज इवन इन वन ऑफ द केस। ठीक है, आगे देखो 2p प्लस सी कैन बी ऑड, कैन बी ऑड, क्या ये ऑड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो यही सेम एग्जांपल अगर आप ले लो, या दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो आप, एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, यही एग्जांपल ले लो चाहे। ठीक है, तो 2p कितना होगा, 11 इंटू 2 प्लस कॉम्पोजिट ले लिया 9, तो ये हो गया 22 प्लस 9 इज इक्वल टू 31, तो ऑड आ ही रहा है, तो ये भी सही है। देन pc कैन बी ऑड, यही सेम एग्जांपल ले लो, p 11 और c जो है 9, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 99, तो यस इट कैन बी ऑड। तो तीनों ही बिल्कुल सही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। कह रहे हैं ये चार पी क्यू आर एस जो है, ये चार जो है सिंगल डिजिट मतलब 1 to 9 पॉजिटिव नंबर्स बोल रहे हैं ना, तो 1 to 9 ये 9 डिजिट्स में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज डिस्टिंक्ट, मतलब चारों अलग अलग होने चाहिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, आपसे पूछ रहे हैं p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय r प्लस एस की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। मेरी बात समझना, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर्स लेने चाहिए पहले तो 6, 7, 8, 9 आर द 4 ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट्स। ठीक है, अब मैं इनको किस तरीके से प्लेस करूं कि मुझे बड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट मिले। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर आपस में क्लोज होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट उतना ही बड़ा होता है। तो मैं इन दोनों नंबर्स को जितना क्लोज बना पाऊं उतना बेटर होगा। जैसे कि एक तरीका तो हो गया कि आप यहाँ पे 9 प्लस 8 ले लो और इसको मल्टीप्लाई करो 7 प्लस 6 से, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा नहीं आएगा। जैसे कि ये आ जाएगा आपका 17 और ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 6 कितना होता है 13। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 17 170, तो ये आ जाएगा आपका 221। लेकिन मैंने आपको बोला ना ये नंबर्स को मैं क्या और क्लोज बना सकता हूं? हाँ सर बना सकते हो। कैसे? 9 प्लस 6 ले लो एक पेयर, और एक पेयर ले लो 7 प्लस 8, एक पेयर ये ले लो। 9 प्लस 6 हो गया 15, 7 प्लस 8 हो गया 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 225। तो 225 से बड़ा आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज देखो ना मैंने दोनों नंबर्स को ही बराबर कर दिया 15 15। तो 225 ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं दूसरा कोई ऑप्शन से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गाइस फॉर टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। देखो ये बोल रहे हैं एक 9 डिजिट नंबर है, वो नंबर क्या है 1 1 1, 9 बार जो है 1 आ रहा है, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है। बोल रहे हैं इसको इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इसको हमने इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, बात समझना। तो ये बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे हमको नहीं पता, और जो भी डिजिट्स होंगे उनका सम बताओ, सम ऑफ द डिजिट्स बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा स्मार्टली करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मैं बोलता हूं आपको 11 इंटू 11, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है 121, ये तो करना आसान है। ठीक है,
देन मान लो 1 इंटू 1, ये भी आसान है, इसका प्रोडक्ट होता है 1। अगर मैं आपसे बोलूँ 111 मल्टीप्लाइड बाय 111, इसका क्या आंसर होगा? ये थोड़ा सा मुश्किल है बट आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको, सम करोगे 1 2 3 2 1, तो इसका आंसर आ गया 1 2 3 2 1। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि अगर 11 इंटू 11, अगर 1 इंटू 1 कर रहे हैं तो आ रहा है 1, अगर 11 इंटू 11 कर रहे हैं तो आ रहा है 1 2 1, पैलिंड्रोम बन रहा है ना, पैलिंड्रोम ही बोलते हैं इसको शायद, कि जो रिपीट होती है, मतलब जैसे यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है नंबर। तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर 4 टाइम्स 1 को 4 टाइम्स 1 से करेंगे तो पैटर्न क्या बोल रहा है? ये होना चाहिए 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1, है ना? तो अगर ये हमने 9 टाइम्स करा है तो इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? गोइंग बाय दिस लॉजिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 8 7 6 5 4 3 2 1, बस इसका सम निकालना है। तो इजी हो गया क्वेश्चन। इसके लिए भी फॉर्मूला है सम निकालने के लिए भी। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम अगर निकालो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर पहले ये 1 to 9 का सम निकाल लो, पहले लेट्स से 1 to 9 का सम निकाल लो पहले, ठीक है? हमें क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स निकालना है ना। तो पहले 1 to 9 का सम निकालो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना है? 9 डिजिट्स, 9 इंटू 10 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया? 45। तो यहां तक का सम आ गया 45। फिर अगर आप 8 से चलो 1 तक, इसका फॉर्मूला, इसको भी फॉर्मूले में लगाओ, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बिकॉज 1 to 8 काउंट, 1 to 8 का सम निकालना है। तो 8 यहाँ पे n हो जाएगा 8, 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 36। तो 45 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो दिस इज इट आज के लिए गाइज, यहीं तक हम करेंगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 23 के, 22, 21 और 2020 के फ्रॉम क्लासिफिकेशन, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे सिमिलर वीडियोस लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन से वीडियो, कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं। ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज आई वांट कि आप लोग जरूर फीडबैक दें वीडियो का, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ठीक है? चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन सून, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।